میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بڑا فین ہوں. میں 15 سال سے ان کو سن رہا ہوں. جی سوال بتائیے پلیز. سوال یہ ہے میرا کہ ہمارے قرآن کی آیت ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو ہمارے ملک پاکستان میں کافی ادارے ہیں. میں ادارے کا نام لینا نہیں چاہتا, اور ہندوستان میں بھی ہوں گے اور ممالک میں بھی رشوت دیتے ہوں گے. تو ہمارے ملک میں یہاں بہت ایک چھوٹی سی کام کی وجہ سے رشوت دینا پڑ جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کریے؟ دوشی کون ہے پھر, ہم یا جو جس کو دے رہے ہیں ہم وہ ہے؟ ایسا آپ نے کوئی کچھ چیز عربی میں کہی اور کہا قرآن میں لکھا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنم میں. میں ایسی کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں جانتا ہوں. حدیث میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے رشوت حرام ہے وہ سورہ بقرہ ہے, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188. اللہ تعالیٰ فرماتے ڈونٹ یوز یور ویلتھ, آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم جج کو اپنے ججمنٹ سے تبدیل کرنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت کھا سکیں. ڈو ناٹ یوز یور ویلتھ ایز اے بیٹ فار ججز ان آرڈر ٹو ایٹ ادر پیپلز ویلتھ. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 188. یہ جو بولے رشوت لینے والا دینے والا نار میں ہے, حدیث ہے, قرآن کی آیت نہیں. جی سوری سر. آپ سمجھے نا؟ جی سر. تو عربی میں آپ نے کیا بولا میں سمجھا نہیں. حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی رشوت حرام ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, لیکن یہ حدیث میں کہا نہیں نکلے گا نار میں جائیں گے. یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی دولت کو استعمال مت کرو جج کو بیٹ دینے کے لیے, رشوت دینے کے لیے, بیٹ رشوت دینے کے لیے, تاکہ آپ دوسرے کی دولت ہضم کر سکے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 188. آپ کا سوال تھا کیا رشوت دینے والا غلط کیا رشوت لینے والا غلط؟ یہ سوال تھا آپ کا. جی سر. دونوں. جی سر. دونوں غلط, لینے والا بھی غلط دینے والا بھی غلط. بہت مجبوری ہوتا ہے, اس وجہ سے دینا پڑ جاتا ہے سر, ورنہ کام نہیں ہوتا. چھوڑ دو کام کو. عام طور کے اوپر رشوت دینا حرام ہے, لیکن یہ آیت کا آپ مطالعہ کریں گے تو کئی علماء کہتے اس میں لکھا ہے آپ رشوت مت دو اگر آپ کس کا مال ہڑپ کر سکے. تو کچھ رشوت جائز ہے, کچھ. مثال کے طور پہ آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے اور آپ جانتے میں گاڑی چلانا جانتا ہوں, یہ ہر ٹائم مجھے فیل کرتا ہے. جی سر. اس کے پہلے مثال دوں گا. میں پہلی بار جب پاکستان آیا تھا 1991 میں 1991 میں آیا تھا میں, تو میرے پاس بہت لگے تھا, کتابیں تھے, قرآن تھی. تو میں ٹرین میں چڑھا, اوور ویٹ تھا, تو ٹی سی آتا ہے, ٹکٹ. اس ٹائم تو کون ذاکر نائک کو جانتا ہی نہیں تھا. آج تو ماشاء اللہ جاؤں گا تو سب پہچانیں گے. اس ٹائم کون جانتا ہی نہیں تھا. ٹکٹ یہ کیا ہے, وزن کرو زیادہ ہو گیا. تو کولی مجھے بولا بھائی صاحب. جی سر. کولی نے بولا بھائی صاحب مجھے 50 روپیہ دے دو میں پاس کراؤں گا. میں بولا رشوت غلط ہے. تو وہ ٹکٹ والے نے مجھے اندر لے کے گیا. میں نے میری دعوتی کام شروع کیا. باہر نکلے, وہ اس نے کہا, وہ ٹکٹ کلیکٹر نے, ایک شرط پہ آپ کو چھوڑوں گا, آپ کو میرے ساتھ چائے پینا پڑے گا. تو میں بولا ٹھیک ہے. باہر نکلا چائے پی کے. وہ ٹکٹ والا کتنا پیسہ دیے؟ 100 روپیہ دیے نا؟ نہیں دیا. کتنا دیے؟ نہیں دیا. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس کو یقین ہی نہیں کہ ٹکٹ والا بنا پیسے مجھے چھوڑے گا. اتنی رشوت ہے یہاں, آپ سمجھے؟ جی سر. وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں تھا میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں. برابر نا. کتنا پیسہ دیا؟ نہیں دیا. کتنا دیا؟ بولو نا صاحب. 200 روپیہ دیا؟ نہیں دیا. بولو نا صاحب. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مجھے جھوٹ بولتا ہے. سب پاکستان کو 100% پتا ہے کہ رشوت کے بنا چھوڑیں گا نہیں, لیکن اللہ کی جب مدد رہتی ہے تو چھوٹ سکتا ہے. سمجھے آپ نے؟ میرے پاس قرآن کی کتاب تھے, ترجمہ تھے, بانٹنے کے لیے لے کے آیا تھا. سمجھے نا؟ تو یہ غلط فہمی ہے کہ رشوت کے بنا کام نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ مجھے تو رشوت دیتا ہی نہیں. لیکن علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ رشوت سے آپ دوسرے کا حق نہیں مارتے تو اجازت ہے. مثال کے طور پہ آپ کو لائسنس, گاڑی کا لائسنس ہے, آپ گاڑی چلانا جانتے, تو یہ بھائی رشوت دے کے چھوڑیں گا نہیں. آپ رشوت دیتے تو آپ گنہگار نہیں, لینے والا گنہگار. سر یہی پوچھنا تھا. لیکن یہ بہت کم موقع سے, بہت کم.
ओवर वेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनेगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना? जी सर। अगर ओवर वेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवर वेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते मुझे, ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, अल्लाह, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते। मैं बोले भाई गलत है भाई, हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, वो जाकिर भाई बोलते एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती करा आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा है इंडिया में। ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन। तो मुझे मोदी से गिला शिकवा है, तो मोदी अगर गलत है तो इंडिया को क्यों गलत करे भाई? मोदी गलत है, इंशाल्लाह आगे रहेगा नहीं, इंशाल्लाह। आप समझे ना? तो आप अगर देखेंगे कि वहां भी हम जितने बड़े प्रोग्राम हम मुंबई में कि दुनिया में किधर नहीं किए, वो मोदी ने आके बन गया। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए माशाल्लाह। तो ये पॉलिटिक्स, और मैं पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं हूं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत देते, बहुत कम टाइम ऐसा होता है, और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाल्लाह माफ करेगा। मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद और है,
कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे? रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत हो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं, कोई धंधा करता ही नहीं हूं। क्या मजबूरी? रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना? पैसे की मोहब्बत ही क्या? तो अक्सर लेकिन जितने रिश्वत होते धंधे वाले, बिजनेस के, ये 95% हराम है। अगर आप बिजनेस में आपका लाइसेंस पास करते, आप दूसरे के लाइसेंस को रोक रहे, तो अक्सर जितने रिश्वत है वो हराम है। लेकिन अक्सर बिजनेस में, चाहे इंडिया में और पाकिस्तान में, हराम काम करने पड़ता है अक्सर। मेरा उसूल क्या है? अगर आप रिश्वत दे के कमाते हैं 1 अरब रुपया, पूरा 1 अरब भी आप अगर डोनेशन में देंगे तो भी नेगेटिव में रहेंगे। रिश्वत देने का आपको नेगेटिव 1000 पॉइंट मिला, डोनेशन देने का प्लस 100 पॉइंट मिला, आप नेगेटिव 900 पॉइंट हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं गरीब इंसान को जन्नत में जाना आसान है, अमीर इंसान की हिसाब किताब होगी। अभी मेरे बिजनेस में पार्टनर अल्लाह ताला, मेजर शेयर उनका है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता नुकसान या फायदा। अब समझ रहे? मेरा बिगेस्ट शेयर होल्डर अल्लाह सुब्हान ताला है, मुझे तो चैरिटी देने का है, तो अल्लाह ताला मेरी झोली में डालता। मैं लेक्चर भी करता, अल्लाह ताला यहाँ से पैसा देता, वहां से पैसा देता। लेकिन दावती काम के लिए बहुत पैसा लगता है, चाहने वाले बहुत है मेरे। लेकिन रिश्वत आम तौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए रिश्वत देने में अगर आप किसका हक मारते हो, और अक्सर रिश्वत में हक मारते हो। मिसाल के तौर पे आप टेंडर दिए, टेंडर में कोई आपका क्लर्क आपको टेंडर के लिए, टेंडर का मैं अमाउंट बोलूंगा, आपको पैसा देता है, ये हराम है। या आपका लाइसेंस अटक गया, लाइसेंस पास करने के लिए आप कोई मिनिस्टर को पैसा देते हैं, हराम है। तो इसमें दोनों गलत, देने वाला लेने वाला। तो अक्सर रिश्वत में दोनों गलत होते, देने वाला लेना। चंद ऐसे किस्से है या वाकये है जिसके अंदर आप अपने हक के लिए लड़ रहे। आपको ड्राइविंग आती है, जानबूझ के आपको फेस कर रहा है, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा ये पास नहीं करेगा। उस टाइम आप कुछ पैसे देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा, लेकिन लेने वाले को हराम है। लेकिन आम तौर पे रिश्वत देना लेना दोनों हराम है। होप द आंसर द क्वेश्चन।